Assalamu alaikum. Welcome to mathematics class for standard 6th, chapter 3, playing with numbers, recapitulation of part 3. Earlier also I had actually uploaded this video, but as my voice was not clear to the students, so it is the recap of the same video today. What you are going to learn in this part? In this recapitulation part, you are going to learn the solution of exercise 3.2 sums. Your 3.2 questions first sum is we have to find the sum of odd numbers and even numbers. हमें एक क्वेश्चन में odd numbers का sum करना है. sum करने का मतलब होता है एडिशन करना, राइट. सो हम ऐड करेंगे ऑल दी ऑड नंबर्स और फिर बी क्वेश्चन के लिए ऐड करेंगे ऑल दी इवन नंबर्स. ऑड नंबर्स जो वो होते हैं जो 2 के टेबल्स में एज एन आंसर नहीं आते, यानी 2 के मल्टीपल नहीं होते, और इवन नंबर्स जो होते हैं वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं. तो हम हमारा फर्स्ट वन लेते हैं. Odd numbers, the not multiples of 2, which are 1, 3, 5, 7, 9, 11 and so on. Even numbers are the multiples of 2, that is 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on. So let's go on adding 2 to odd numbers and let's see what the answer is. Love here. 1 plus 3 gives you the answer 4. 3 plus 5 gives you the answer 8. 5 plus 7 gives you the answer 12. 5 plus 9 gives you the answer 14. So as you can see, when two odd numbers were added, the answer was 4, 8, 12, 14. And the last digit are the multiple of 2, that means all the answers are even. So we can say that all answers are even. Now let us check for the addition of all multiples of 2, that is even numbers. So let's start adding 2 to even numbers. 2 plus 4, 6. 2 plus 6, 8. You can take any randomly, any two even numbers. 4 plus 6, 10. 8 plus 6, 14. So here when the addition of two even numbers were done, you could see all the answers are even. So whether you add two odd numbers or you add two even numbers, your answer comes always even. Understood? So this is what we have summarized. So for question A, the sum of any two odd number is even, and for question B also, the sum of any two even number is also even. Move ahead with 3.2 exercise second sum A. We have to check out true or false for the given statements. The statement for question A is the sum of 3 odd number is even. अगर 3 odd numbers को ऐड करेंगे, इसके पहले वाली स्लाइड में हमने ये डिस्कस किया कि odd numbers तो थे लेकिन हमने सिर्फ दो दो के पैर लिए थे, राइट. 2 का एक पैर था. अब हम कितने ऐड करने वाले हैं? 3 ऑड नंबर ऐड करने वाले हैं और ये चेक करने वाले हैं क्या उनका भी आंसर इवन आता है या नहीं. 2 ऑड नंबर को ऐड करने पर तो आंसर इवन ही आता है. अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा. अब इसमें हम 3 नंबर्स को ऐड करके देखेंगे. 1 प्लस 3 प्लस 5, यानी 1 प्लस 3 4 और 4 प्लस 5 9 आता है. तो 9 एक ऑड नंबर है, इवन नहीं है. यानी इस मर्तबा अगर हमने 3 ऑड नंबर्स को ऐड किया तो आंसर ऑड आया है, राइट. नाउ लेट्स चेक फॉर नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स. 5 7 9 एडेड गॉट 21. 11 9 7 एडेड गॉट आंसर 27. सो इफ 3 odd numbers are added, your answer are always odd. So 2 अगर ऐड करते हैं तो इवन होता है और अगर 3 ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा ऑड आता है. सो द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड. तो ये जो स्टेटमेंट है इज इवन, ये क्या हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट हो गया. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. 3.2 exercise question B. Sum of 2 odd numbers and 1 even number is even. चलो चेक करते हैं. We know 2 odd numbers हमने इसके
पहले वाले क्वेश्चन में, यानी ये स्लाइड के पहले वाली स्लाइड में दो दो ऑड नंबर्स को हमने ऐड किया था और हमारा आंसर इवन आया था, और इवन आंसर को वापस इवन से ऐड करना है, यानी एक इवन और दूसरा इवन, तो आंसर इवन ही होगा, राइट। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होने वाला है। लेट्स चेक इट आउट। हमने दो ऑड नंबर्स लिए हैं 1 और 3, और एक इवन नंबर लेना है और वो है 2। इन सबको ऐड किया, आंसर आया 6। अभी भी मैंने यहाँ पर 5 और 7 दो ऑड नंबर लिए हैं और एक इवन नंबर लिया है, इनको भी ऐड करके देखा, आंसर आया 16, इवन है। 9 plus 13 two odd numbers, and 6 one even number, added and got the answer as 28. Last number is 8, that is multiple of 2, so the 28 number is also even. So when two odd numbers and one even number is added, the answer is always even. So the given statement is true. Let's go for the next one. 3.2 exercise C question, true or false के लिए. The product of three odd number is odd. Product का मतलब होता है multiplication. Odd numbers हैं 1, 3, 5, 7 and so on, right? जो multiple of 2 नहीं होते. So इन तीन odd numbers को लेना है और उनका multiplication करना है. You take randomly any 3 odd numbers. हमने यहाँ पर 1, 3, 5 लिया है. 1 multiply by 3 is 3. 3 multiply by 5 is 15. So what the answer is? The answer is odd. 1 3 is a 3, 3 7 is a 21. Again, these all three are odd numbers. When do the multiplication, answer comes 21 odd. 3, 5, 7, all three odd numbers. When did the multiplication, answer comes 105. So when the multiplication was done of three odd numbers, the answer comes always odd, right? So the product of three odd number is odd. The statement is true. Let's go for the next one. D question. If an even number is divisible by 2, the question is always odd. चलो चेक करते हैं. हम एक even number को divide करते हैं 2 से. So even number लिया 4, divide किया 2 से, division में 2 है. So when we did the cancellation or did the division, the answer comes as 2. कैसा है ये नंबर? आंसर आपका करेक्ट, इवन है. अब हम 6 को लेते हैं, एक इवन नंबर है, डिवाइड करते हैं 2 से, आंसर क्या आया? 3. फाइन, ये क्या है? करेक्ट, ऑड नंबर है. 8 इवन नंबर को डिवाइड करते हैं 2 से, इसने कहा है कोई भी इवन नंबर ले सकते हैं आप. सो 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, 8 लिया, राइट? आप किसी को भी डिवाइड कीजिए, 2 से ही डिवाइड करना है और आपका आंसर उसने कहा है ऑलवेज ऑड आता है. सो यहाँ देखिए, जब हम लोगों ने 8 को डिवाइड किया 2 से तो आंसर 4 आया. फर्स्ट वन किया था, आंसर इवन आया. सेकंड किया हमने डिवीजन, आंसर ऑड आया. थर्ड एग्जाम्पल लेके हमने डिवाइड किया, आंसर इवन आया. यानी हो सकता है इवन हो या हो सकता है आंसर ऑड भी हो. जरूरी नहीं है 2 से डिवाइड करने पर आपके क्वेश्चंस हमेशा के हमेशा ऑड ही आए. सो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाता है? फॉल्स हो जाता है. विल गो फॉर द नेक्स्ट वन. 3.2 एक्सरसाइज ई क्वेश्चन. ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड. अगर आपको याद हो, मैंने आपको प्राइम चार्ट बताया था. इस वीडियो में भी हम इसको देखेंगे, ओके. लेकिन इस क्वेश्चन से पहले वो स्लाइड नहीं आ रही है, ठीक है. सो यहाँ पर अगर हम कहें कि हमें प्राइम नंबर्स देखने, तो आपको पता है हम जब 1 से स्टार्ट करते हैं, सो 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर. ना वो प्राइम है ना वो कंपोजिट है, वो एक्सक्लूसिवली एज 1 स्टैंड करता है, ठीक है. अगर हम 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 कैसा है? इवन नंबर भी है और प्राइम भी है. 2 इकलौता ऐसा नंबर है, जस्ट 1 नंबर, जो इवन है और प्राइम है. इसके अलावा आपको 100 तक में जो भी नंबर मिलेंगे वो ऑड और प्राइम होंगे. इवन प्राइम 1 से लेके 100 में, सॉरी 2 से लेके 100 में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम है. बाकी सारे नंबर्स ऑड प्राइम होते हैं, ठीक है. तो ऑड प्राइम में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन इवन प्राइम में सिर्फ एक ही मेंबर है और वो है नंबर 2. तो इसने कहा है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है क्योंकि 2 कैसा है? इवन प्राइम है. अंडरस्टूड. विल गो फॉर द नेक्स्ट वन. दैट्स क्वेश्चन एफ. प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स. प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं होते. फैक्टर्स का क्या मतलब होता है? वो जिसके टेबल में वो डिवाइड होता हो, गिवन नंबर, राइट. अब सपोज हम लोग एक प्राइम नंबर ले लेते हैं, सपोज ले लेते हैं 2. क्या 2 1 से डिवाइड होता है? हाँ, 1 2 जा 2. क्या 2 2 से डिवाइड होता है? हाँ, 2 1 जा 2. तो यानी 2 के दो फैक्टर्स हो गए, 1 और 2.
वन तो खैर सभी नंबर्स को डिवाइड कर पाता है, करेक्ट। वन एक ऐसा नंबर है जो ऑल गिवन नंबर्स को डिवाइड कर सकेगा, राइट। किससे? उसके खुद के ही नंबर से। जैसे कि अगर मैं 4 लूं तो 4 1 से डिवाइड होगा, 1 4 जा 4, यानी नंबर डिवाइडेड बाय 1 बाय इटसेल्फ, राइट। उसी तरह वो इटसेल्फ डिवाइड करता है 1 से, यानी 4 के टेबल में 4 1 जा 4, क्वेश्चन आया 1। सो ये दो फैक्टर प्राइम नंबर के तो होते ही हैं और कंपोजिट के तो ज्यादा होते हैं। जैसे अभी हमने 4 की ही बात की, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, लेकिन 1 और 4 के बीच में एक टेबल ऐसा भी है जो 4 को डिवाइड करता है, वो है वो है नंबर 2, 2 2 जा 4। सो प्राइम नंबर में दो फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, लेकिन कंपोजिट में 1 द नंबर इटसेल्फ के अलावा आपको एक या एक से ज्यादा और भी नंबर्स मिलेंगे, राइट। तो उसके फैक्टर्स मोर देन 2 होते हैं, जबकि प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ कहा है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव फैक्टर्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, क्योंकि उसके पास कम से कम 2 फैक्टर्स तो होते ही हैं। विल गो फॉर द नेक्स्ट वन, जी क्वेश्चन। सम ऑफ 2 नंबर प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 जब इस स्लाइड का किया था तब हम लोगों ने देखा था, हमने 2 ऑड नंबर्स लिए थे, 2 इवन नंबर्स लिए थे और उनके आंसर प्राइम आए थे। अब यहाँ पर हमें 2 प्राइम नंबर्स लेने हैं और चेक करना है क्या उनका आंसर भी इवन आता है। लेट्स स्टार्ट। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, इन दोनों को ऐड किया, आंसर 5 आया। 5 कैसा है? ऑड है। तो देखो पहले ही क्वेश्चन में हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है ऑलवेज इवन, वो रॉन्ग साबित हो जाता है, यानी फॉल्स हो जाता है। सो द नेक्स्ट ऑल्सो वी विल ट्राई एंड सी। हमने एक और प्राइम नंबर लिया 2, हमने एक और प्राइम नंबर लिया 7, इनको ऐड किया तो आंसर आया 7, यानी कि ये एक ऑड नंबर है। उसके बाद में मैंने एक ऑड नंबर लिया, प्राइम नंबर लिया 3, एक अनदर प्राइम नंबर लिया 5, इनको ऐड किया तो आंसर इवन आया। अब इवन आया है, देखो अर्लियर तो दोनों एग्जाम्पल में हमें ऑड नंबर्स आए थे, और अगर हम करते चले जाएं तो पॉसिबल है कि हमें ऑड एज एन आंसर आए या इवन नंबर एज एन आंसर आए। सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। विल गो फॉर द नेक्स्ट वन, एच क्वेश्चन। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ओनली का मतलब होता है इकलौता, सिर्फ और सिर्फ एक। हाँ, तो मैंने कहा ना इवन प्राइम में एक ही मेंबर है 2, लेकिन ऑड प्राइम में बहुत सारे नंबर्स आते हैं। सो एक बड़ा ग्रुप है और एक मेंबर का छोटा ग्रुप है ना। इवन प्राइम है और ऑड प्राइम है, तो इवन प्राइम में एक ही नंबर आएगा 2, लेकिन ऑड प्राइम में बहुत सारे आएंगे, 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। समझ में आया? सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। विल गो फॉर द नेक्स्ट वन, that is 3.2's I. All even numbers are composite numbers. सारे even numbers composite कहा गया है। अब भी हमने देखा 2 even तो है लेकिन composite नहीं है, प्राइम है। हाँ, 2 के बाद में जितने भी even आपको मिलते हैं वो सारे के सारे composite होते हैं, प्राइम नहीं होते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसा है जो इवन है और प्राइम है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे इवन नंबर्स कंपोजिट है, क्योंकि उसमें 2 भी आ गया। हम लोग अगर इवन की बात करें तो उसमें 2 भी आ गया, और 2 एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो कंपोजिट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। हियर कम्स द चार्ट ऑफ ऑल हाईलाइटेड प्राइम नंबर्स, जिसमें 2 3 5 7 यू कुड सी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यहाँ पर हमें 2 पेयर्स ऑफ नंबर ऐसे लेने हैं, 13 और 31। द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। दोनों कैसे हैं? प्राइम है। देखिए 13 ये रहा ब्लू हाईलाइटेड और 31 ये रहा। दोनों में खासियत क्या है? एक इंपॉर्टेंट चीज है, 1 और 3 डिजिट, 3 और 1, ये दोनों नंबर सिर्फ 2 डिजिट से बने हैं। एक नंबर है 1 और दूसरा नंबर है 3, करेक्ट। इनके अलावा बीच में और भी प्राइम नंबर्स आते हैं, 5 आता है, 7 आता है, लेकिन वो 2 डिजिट नहीं ली गई है। इन लोगों ने ऐसे 2 नंबर लिए हैं जो फ्लिप करो तो वही 2 आते हैं, यानी 1 3 का उल्टा करो 3 1 आ गया, राइट। हमें ऐसी ही जोड़ियां निकालनी है। वी हैव टू टेक आउट सच पेयर्स, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 and 3 एंड वी हैव टू फाइंड सच पेयर्स अप टिल 100। सो ये मैंने आपको पूरा प्राइम नंबर्स का चार्ट दे दिया है, और इसमें से हमें सिलेक्ट ऐसे नंबर करने हैं जिसकी डिजिट सेम हो। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं 2 नंबर के लेती हूँ, 1 1, तो 1 1 का रिपीट करेंगे तो 1 1, हमें 2 डिफरेंट चाहिए, इसीलिए उसने 1 और 3 लिया, स्टार्टिंग ही 1 और 3 से किया है, यानी हम 13 अब नहीं ले सकते। लेट्स गो फॉर 1 7। अगर मैं इसको फ्लिप करूं तो 7 1 होगा,
क्या वो प्राइम है? लेट्स चेक। हाँ प्राइम है क्योंकि हाईलाइटेड विद ब्लू है, तो हम ये दो पेयर ले सकते हैं। देखो लिख लिया 17 और 71। इसके अलावा अगर हम सोचे तो 19 का 91 है, हाँ ये रहा 91, लेकिन 91 ब्लू हाईलाइटेड नहीं है, इसका मतलब ये कंपोजिट है। तो मैं 19 तो ले सकती हूँ लेकिन 91 नहीं ले सकती, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे नंबर होने चाहिए? दोनों के दोनों प्राइम होने चाहिए, ठीक है। सो वी कैन नॉट टेक 19। लेट्स गो फॉर 23। अगर मैं 23 लूं तो इसको फ्लिप करने पर 32 होता है। अब देखो 32 तो ब्लू हाईलाइटेड है नहीं, यानी ये एक कंपोजिट नंबर है। इसका मतलब हम 23 प्राइम नंबर तो ले सकते हैं, लेकिन अनदर 32 हमारा प्राइम नहीं, कंपोजिट है, तो मैं ये पेयर भी नहीं ले सकती। अंडरस्टूड। लेट्स गो फॉर 31। 13 के साथ में आ चुका है, सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस। विल गो फॉर 37 और इसका फ्लिप होगा 73। गुड, बोथ आर इन ब्लू, आई कैन टेक। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज 41। इसको फ्लिप करते हैं तो 14 कंपोजिट नंबर, राइट। अगर ओके ये पहले आ चुका है, लेकिन 14 क्या है? कंपोजिट नंबर है, दोनों के दोनों हमारे पास प्राइम होने चाहिए। लेट्स गो फॉर 43 और फ्लिप करने पर 34, ये रहा, ठीक है, यानी ये कंपोजिट नंबर है, वी कैन नॉट टेक दिस। लेट्स गो फॉर 47 और फ्लिप करने पर 74 ये रहा, करेक्ट, कंपोजिट नंबर है, वी कैन नॉट टेक। लेट्स गो फॉर 53 को फ्लिप करेंगे तो 35, सी हियर कंपोजिट नंबर है, वी कैन नॉट टेक। अगेन गो फॉर द नेक्स्ट वन 59, फ्लिप करेंगे तो 95, सी हियर कंपोजिट नंबर है, वी कैन नॉट टेक। लेट्स गो फॉर 61, फ्लिप करेंगे तो 16, वी कैन नॉट टेक। अगेन 16 इज अ कंपोजिट नंबर। लेट्स गो फॉर 67, फ्लिप करेंगे तो 76, हियर इट इज अ कंपोजिट नंबर। हमारे दोनों के दोनों प्राइम होने चाहिए, दोनों ब्लू हाईलाइटेड होने चाहिए, तो ही पॉसिबल है, राइट। विल गो फॉर 71 हम कर चुके हैं, 7337 ये भी हम कर चुके हैं। लेट्स गो फॉर 79 और फ्लिप करेंगे तो 97। हम कितने पेयर्स लेने थे? ओके, हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, राइट। 79 हो गया, ये वाला पेयर लिख लिया, सी फाइन। नेक्स्ट, इसके अलावा 83, फ्लिप करेंगे तो 38 एक कंपोजिट नंबर है, हम नहीं ले सकते। नेक्स्ट प्राइम है 89, फ्लिप करेंगे तो 98, करेक्ट, 98 एक कंपोजिट नंबर है, हम नहीं ले सकते। और 97 अब भी हम ले चुके हैं, दैट मीन्स अप टिल 100 हमने सारे पेयर्स निकाल लिए हैं, और वो हैं 1771, 3773, 7997। और इस तरीके से हम लोगों ने 3 पेयर्स निकाले हैं इन विच द नंबर्स यूज्ड आर सेम, 2-digit number, and they both are prime. I hope you understood this. We'll move for the next one. That is 3.2 exercise, 4th question. Write down separately the prime and composite number less than 20. 20 से कम वाले लिखने हैं। क्या क्या लिखने हैं? प्राइम भी और कंपोजिट भी। वन बाय वन लिस्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ 1 एंड विल एंड ऑन 20। ओके, हमें उसके राइटिंग फैक्टर्स क्या कहा है? लेस देन 20, यानी हमें 19 पर रुक जाना होगा, राइट। नाउ लेट्स चेक फॉर 1 इज नाइदर अ प्राइम और नॉर अ कंपोजिट नंबर। हम 1 नहीं लिस्ट कर सकते क्योंकि ना वो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, सो वी आर गोइंग टू स्किप 1। 2 कैसा है? प्राइम है। फैक्टर्स कितने आते हैं? 1 2 2, 3 1 3 3, क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। 4 1 4 4 एंड 2 2 4, 2 से ज्यादा यानी 1 एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा आपको अगर एक और भी मल्टीपल या फैक्टर मिलता है तो आप समझ लीजिए कि ये एक कंपोजिट नंबर है। विल गो फॉर 5 1 5 5 5 1 5, ये कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स हमेशा कैसे होते हैं मालूम है? जिस किसी का भी आपको प्राइम ढूंढना हो, उसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके जो फैक्टर्स है वो उससे कम में ही मिल जाते हैं, यानी 5 से लेस में मिलेगा। तो 5 से लेस 4 होता है। अगर 4 तक में 1 के अलावा और कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता तो वो नंबर क्या हो जाता है? प्राइम हो जाता है। अब लेट्स सी 6। अब देखिए 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 6 जा 6, और 6 से छोटे और 2 नंबर्स ऐसे हैं जो 6 को डिवाइड कर पाते हैं। एक है 2 और दूसरा है 3। अगर मैं 2 के टेबल से डिवाइड करूंगी 6 को तो 2 3 जा 6, और 3 के टेबल से डिवाइड करूंगी 6 को तो 3 2 जा 6, राइट ना। तो फैक्टर्स लिखने का तरीका मैंने आपको अर्लियर 3.1 एक्सरसाइज में बताया है, राइट। इसमें भी बताऊंगी और एक बार, ठीक है, इस वीडियो में भी। नाउ ये अब कैसा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। मैं जो जो प्राइम है उनको हाईलाइटेड करते जा रही हूँ, सी। ओके,
We'll go for the next one. 7. 1 7 जा 7 प्राइम नंबर है. 8 के लिए 8 से छोटे दो और नंबर्स हैं जो 8 को डिवाइड कर पाते हैं, तो हमारे फैक्टर्स हो गए 4, 1, 2, 4 और 8 कंपोजिट नंबर. 9 1 3 9 कंपोजिट नंबर. 10 1 2 5 10 कंपोजिट नंबर. 11 1 11 11 प्राइम नंबर. अगर आपको 20 से लेस देन प्राइम नंबर्स आते हो तो बहुत इजीली हम बता सकते हैं विदाउट दिस थिंग. हमारे पास 19 तक में कितने होंगे? 19 इवन प्राइम नंबर होगा, राइट? सो 2 3 5 7 11 13 और 19. अगर ये प्राइम है तो बाकी जितने बचे 1 को छोड़कर वो सारे क्या होंगे? कंपोजिट नंबर हो गए, राइट? अब अगर आप ये मेथड ना भी बताओ, डायरेक्ट हम तो लिस्ट करने वाले हैं, राइट? ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको समझा रही हूँ, इसीलिए चार्ट रिप्रेजेंट कर रही हूँ. बाकी आपको तो सिर्फ आंसर लिखना होगा, राइट? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. आई होप यू अंडरस्टूड. देन 19 तक हम लोगों ने कर लिया है, हम 20 नहीं करेंगे बिकॉज लेस देन 20 बोला है, राइट? सो प्राइम नंबर लेस देन 20 आर, हम लोग लिख देंगे 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19, करेक्ट? 17 एंड 19. नाउ फॉर द कंपोजिट नंबर्स हियर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, बट वी कैन नॉट टेक 1 एज आई सेड अर्लियर that it is neither a prime number nor a composite number, right? So हम 1 नहीं ले सकते, हम 20 नहीं ले सकते because we have to count less than 20. तो हमारे नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं. अगर 2 प्राइम है तो हम उसे छोड़ देंगे, 3 प्राइम है तो हम उसे छोड़ देंगे, 4 क्या होगा? कंपोजिट होगा. या अर्लियर लिस्ट में हमने देखा कि जो हाईलाइटेड है वो प्राइम है और जो नॉन हाईलाइटेड है वो कंपोजिट है, और आपके लिए लिस्टिंग बहुत ही इजी हो जाएगी. तो दिस इज द कंप्लीट आंसर व्हाट यू आर गोइंग टू गो फॉर राइट फॉर द क्वेश्चंस. Okay, the next one is 3.2 exercise 5th question. हमें क्या ढूंढना है? What is the greatest prime number between 1 and 10? सबसे पहले तो आप 1 और 10 के बीच के प्राइम नंबर लिस्ट कर लीजिए. 1 नहीं होगा because 1 is neither a prime number nor a composite number. हम लिस्ट करेंगे 2 से, और between बोला है ना तो 10 से पहले एंड कर देंगे. So 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है. हमने लिस्ट कर दिए सारे प्राइम. लेकिन क्वेश्चन क्या है मालूम है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट? सबसे बड़ा लेना है 1 और 10 के बीच में, तो ये रहे 2 3 5 7 में ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? यस, 7. सो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर इज 7. विल गो फॉर द नेक्स्ट वन. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स. हमें 2 ऑड प्राइम नंबर का सम बताना है गिवन 44 को. हमने पहला वाला देखो मैंने कैंसिल कर दिया है, वो मैं आपको रीजन यहाँ ब्रैकेट में लिख चुकी हूँ. दैट 1 + 43. अब मैं 1 नहीं ले सकती. क्यों नहीं ले सकती? बिकॉज 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर. यानी अगर मैं 44 को 43 + 1 बताऊं, क्योंकि 43 प्राइम है, राइट? लेकिन 1 प्राइम नहीं है. हमें दोनों सम कैसे लेने हैं? दोनों नंबर्स कैसे होने चाहिए? ऑड और प्राइम होने चाहिए. यानी मैं नेक्स्ट 42 + 2 भी नहीं ले सकती, क्योंकि 2 कैसा होगा? इवन नंबर हो जाएगा. 42 कैसा होगा? इवन हो जाएगा. 2 इवन प्राइम भी है, राइट? सो मैं ये भी नहीं ले सकती पेयर, सो कैंसिल. लेट्स गो फॉर 41 नाउ. देखो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, 43 से 42, 42 से 41, और यहाँ पे हम असेंडिंग में आ रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3. अब चेक करते हैं क्या दोनों ऑड और प्राइम है. 41 कैसा है? ऑड प्राइम. 3 कैसा है? ऑड प्राइम. सो हमें जो गिवन कंडीशन है क्वेश्चन की कि दोनों के दोनों ऑड प्राइम होने चाहिए, यहाँ पर फुलफिल होती है. इसीलिए हम 44 को इसका सम बताएंगे. दैट 3 + 41 गिव्स यू 44. सो बोथ 3 and 41 आर प्राइम एंड ऑड. सो द आंसर इज दिस. अंडरस्टूड? सेकेंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है. 36 को हमें 2 ऑड प्राइम नंबर्स बताना है. हम 1 नहीं ले सकते बिकॉज नाइदर अ कंपोजिट नॉर इवन. 2 नहीं ले सकते, बोथ आर इवन. 3 और 33 नहीं ले सकते. वाई? बिकॉज 33 इज कंपोजिट. 4 और 32 नहीं ले सकते बिकॉज बोथ आर इवन और कंपोजिट. ये भी नहीं ले सकते, दोनों ऑड प्राइम होने चाहिए. कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए. तो वो आता है नंबर 31 और 5. 5 ऑड भी है, प्राइम भी है. 31 ऑड भी है, प्राइम भी है, राइट? सो अगर हम इवन नंबर स्किप ही कर दें तो हम लोग सिर्फ ऑड नंबर्स को ही लेकर ऐड करें, तो वी आर गोइंग टू रीच अवर आंसर वेरी क्विकली. अंडरस्टूड? हम इवन नंबर्स लेंगे ही नहीं. अंडरस्टूड? सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन. दिस इज 3.2 exercise 7th question, where we have to give 3 pairs of prime numbers whose difference is t. 2.
अगर आपको याद हो तो मैं आपको एक कंसेप्ट में ट्विन प्राइम नंबर सिखा चुकी हूँ। ट्विन प्राइम नंबर फिर से रिकैप कराती हूँ। कैसे होते हैं? दो प्राइम नंबर होते हैं जिनके बीच में एक ही कंपोजिट नंबर होता है, इसीलिए मैंने आपके सामने ये चार्ट रिप्रेजेंट किया है। ये चार्ट में हमें दो ब्लू बॉक्स यानी कि दो प्राइम नंबर ढूंढने हैं जिसके बीच में एक व्हाइट बॉक्स यानी एक कंपोजिट नंबर हो। तो देखिए ये ब्लू बॉक्स और ये ब्लू बॉक्स क्या हो गया, ये दोनों के दोनों प्राइम हो गए, और दोनों के बीच में एक ही व्हाइट बॉक्स है, यानी ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। एक ये ट्रिक है। दूसरी ट्रिक ये है कि अगर हम दो प्राइम नंबर को माइनस करेंगे, यानी ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 5 माइनस 3, तो आपका आंसर ऑलवेज 2 आएगा। क्या आना चाहिए? आपका आंसर हमेशा 2 आना चाहिए। तो वो क्या होंगे? ट्विन प्राइम होने चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको 2 से लेके 100 के बीच के सभी प्राइम नंबर्स को याद करना पड़ेगा। यू हैव टू मेमोराइज देम। आपको एक मर्तबा ये मेमोराइज हो गया, इतने ही है, क्योंकि प्राइम नंबर गिने चुने ही है। यहाँ पे जितने भी आपके पास ब्लू बॉक्सेस हैं, आप सिर्फ उनको याद कर लें तो 1 को छोड़कर बाकी सारे कंपोजिट हैं, राइट? तो अगर आप इतना याद कर लें, अपने खुद के लिए मेमोराइज कर लें, इट विल बी वेरी क्विक एंड फास्ट फॉर यू टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज, ओके, एंड द फर्दर एक्सरसाइज इवन, ओके। तो अब हम लोग ट्विन प्राइम अगर यहाँ बॉक्स से सिलेक्ट कर लें तो देखो हम लोग फटाफट लिस्ट बना सकते हैं। 3 5, दूसरा होगा 5 7, नेक्स्ट होगा 11 13, नेक्स्ट होगा 17 19। 31 नहीं ले सकते क्योंकि 31 और 37 के बीच में बहुत सारे व्हाइट बॉक्सेस हैं, या इन शॉर्ट हम ये कह सकें ये तो सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। हमें कितने लेने हैं? हमें दो ऐसे बॉक्स लेने हैं जिनके बीच में एक ही बॉक्स व्हाइट आता हो, यानी हम 31 और 37 को अगर माइनस भी करें तो डिफरेंस 2 आना चाहिए, जबकि यहाँ नहीं आता। 37 माइनस 31 करोगे तो आंसर आपका 6 आएगा, 2 नहीं। तो हम ऐसे नंबर नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर बोला है 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। क्वेश्चन लिखने में यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, 3 पेयर्स लिखा हुआ है। ओके, हम लोग को 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेने हैं, नो प्रॉब्लम। 3 पेयर्स का मतलब होता है हमें सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स देने हैं, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे दिए हैं, सी मैंने बहुत सारे लिख दिए हैं आपके लिए, राइट? आप इसमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं। वी हैव टू गिव जस्ट 3, सो नो प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन, अंडरस्टूड? विल गो अहेड। आपको समझ में आ गया ये पूरा क्वेश्चन? यू डू इट वेरी पेशेंसली, ओके, एंड गेट द करेक्ट आंसर्स। विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। That's 3.2 exercise 8th question A question है 23। फाइंड क्या करना है? Which of the following numbers are prime? हमें चेक करना है 23 प्राइम है या नहीं है। So 23 के लेस देन नंबर 22 तक में अगर आप कोई भी फैक्टर निकाल सको अदर देन 1 एंड 23 तो ये कॉम्पोजिट होगा, वरना प्राइम है। तो देखो हम चेक करते हैं। 123 आता है, बाकी 2 के टेबल से लेकर 22 के टेबल तक आप 23 को किसी में डिवाइड नहीं कर सकेंगे। लास्ट में 23 खुद आ जाएगा जो अपने आप को 1 से डिवाइड कर सकता है। द नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ बाय 1। सो 23 1 जा 23, नंबर रिपीट हुआ है 123 और 23 1, तो हम रिपीटेड नहीं लेंगे, दैट्स व्हाई आई हैव कैंसल्ड दिस। सो व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 23? ओनली 1 एंड 23, राइट? यानी 1 वो तो सभी को डिवाइड कर लेता है, एंड द नंबर इटसेल्फ यानी 23 खुद यहाँ पर आ गया। सी सेम नंबर यहाँ पर आ गया। सो ये कैसा नंबर है? डेफिनेटली इट इज द प्राइम नंबर एज इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। तो ये जो गिवन क्वेश्चन है 23 का हम कहेंगे यस इट इज अ प्राइम नंबर। लेट्स चेक फॉर 51। 51 अगर हम ट्राई करें 151 जा 51 हमारा पहला फैक्टर, राइट? देन 3 17 जा 51 और फिर रिपीट होता है 17 3 जा रिपीट हुआ। वी आर नॉट गोइंग टू टेक द रिपीटेशन, कैंसल इट, एंड अवर फैक्टर्स आर हियर। हमें इसे यू शेप में लिखना है, यानी देखो ऐसे लिखेंगे, 1 के बाद लिखेंगे 3, 3 के बाद लिखेंगे 17, 17 से बाद लिखेंगे 51। इस यू शेप ऑर्डर में अगर आप लिखो तो सारे फैक्टर्स हमने लिस्ट कर दिए। सी 1 3 17 51 है ना, हमने सारे लिस्ट कर दिए फैक्टर्स 51 के। तो कितने हो गए? मोर देन 2। 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा आपको 2 और फैक्टर मिले हैं 3 और 17। सो क्या ये प्राइम हुआ? नो, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो वी कैन से दैट इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर वो प्राइम नहीं है तो क्या होगा? यस, कंपोजिट नंबर होगा। द नेक्स्ट वन इज 3.2's 9th question. Write 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them. अब हमें
कंपोजिट नंबर्स निकालने हैं। कंपोजिट मतलब सारे वाइट बॉक्सेस होंगे इस टेबल के हिसाब से, इस चार्ट के हिसाब से। उसके अलावा कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव के मतलब होता है वन आफ्टर द अदर, यानी एक के बाद एक, लाइन से, सीक्वेंस में। लाइन से कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए, यानी एक के बाद एक कंपोजिट बिल्कुल बाजू बाजू में होने चाहिए, और सारे के सारे कंपोजिट होने चाहिए। इसका मतलब आप जब 7 बॉक्सेस सिलेक्ट करो, है ना, इस चार्ट से, तो उसके बीच में एक भी ब्लू बॉक्स नहीं आना चाहिए, तो ही वो 7 नंबर्स जो हैं वो सीक्वेंस में कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर होंगे। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? सो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमारा व्हाइट बॉक्स पहला आता है 4। मैंने 1 क्यों नहीं लिया? यस, 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, इसलिए हम 1 नहीं ले सकते। 4 लेंगे तो एक ही बॉक्स है, नहीं ले सकते। हमें कितने बॉक्सेस चाहिए? 7। क्यों? 7 कॉन्जिक्यूटिव है ना। बाद में देखो यहाँ पर आता है 6, 1 है, नहीं ले सकते। 8, 9, 10, अरे हाँ ये तो कॉन्जिक्यूटिव है, देखो 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, और इनके बीच में कोई भी ब्लू बॉक्स नहीं है। बट हमें 3 नहीं चाहिए। हाउ मेनी नंबर्स वी नीड? यस, वी नीड 7 नंबर्स। सो हम वो देखें कहाँ पर आते हैं। सी 1 बॉक्स, अगेन 1 2 3 बॉक्सेस। 13 प्राइम है, 17 प्राइम है, इसके बीच में देखो कॉम्पोजिट के बॉक्सेस कितने हैं? 3। हमें कितने चाहिए? करेक्ट 7। यहाँ पर आते हैं 20, 21, 22 कॉन्जिक्यूटिव है बट 3 ही हैं। 24, 25, 26, 27, 28, वेरी गुड, हमें ज़्यादा मिले। लेकिन कितने मिले हैं? काउंट करते हैं। 24 से लेकर 28 तक कितने बॉक्सेस हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5, नहीं ले सकते। हमें 7 बॉक्सेस चाहिए। मूव अहेड, यहाँ पर दिख रहे हैं, अगेन काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, नहीं ले सकते, है ना। 7 आने चाहिए। विल गो अहेड, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 3, यानी ये 3 और ये 48 से अगर काउंट करें तो 48, 49, 50, 51, 52 कॉन्जिक्यूटिव है। लेकिन देखिए कितने बॉक्सेस हो जाते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, हमें 7 चाहिए। देखो 54 से 58 वापस से कॉन्जिक्यूटिव हैं, है ना, लेकिन बीच में एक भी प्राइम भी नहीं आ रहा। कितने बॉक्सेस हैं? कितने नंबर्स हैं? 54 से 54 से 58, 1, 2, 3, 4, 5 ही हैं, नहीं ले सकते। विल गो फॉर 62 टिल 66, 1, 2, 3, 4, 5, अगेन ओनली 5। यहाँ पर 74, 75, 76, 77, 78, ओनली 4 नंबर्स, कैन नॉट टेक। गो ईयर 84, 85, 86, 87, 88, only 5 numbers we cannot take. Here 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ओहो मोर है। चलो काउंट करते हैं कितने मिले। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये रहे वो कॉन्जिक्यूटिव 7 नंबर्स, राइट। कंपोजिट कॉन्जिक्यूटिव 7 नंबर्स हैं जो 1 और 100 के बीच में आते हैं। बाकी सब हैं, देखो 1 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 2 तो नहीं मिलते, 1 मिलेंगे, 3 बॉक्सेस मिलते हैं, 5 मिलते हैं और डायरेक्ट 7 मिलते हैं, है ना। तो 7 में सिर्फ यही आते हैं। सो द कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स मीन्स द नंबर्स हैविंग नो प्राइम नंबर्स बिटवीन देम आर दीज नंबर्स, एंड दे आर 90 till 96. We have to list them and we have answered our question. So next question is 3.2's 8th question. Express each of the following numbers as the sum of 3 odd prime. 3 odd prime, इवन प्राइम नहीं, यानी हम 2 छोड़ ही देंगे। हम स्टार्ट करेंगे 3 से लेना, क्योंकि वो कैसा होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। तो हम 3 से लेना स्टार्ट करेंगे और 3 प्राइम नंबर्स को ऐड करेंगे, है ना। क्या करेंगे? ओके, और आंसर हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आना चाहिए। यानी देखो हमने पहले लिस्ट किया, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने, दैट नंबर शुड बी ऑड, तो मैंने ऑड नंबर्स की लिस्ट बनाई। लेकिन नंबर शुड बी प्राइम, तो मैंने ये दोनों की, अब ये दोनों में से अगर हम देखें तो हम 1 नहीं ले सकते, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 नहीं ले सकते क्योंकि ये इवन है, यानी हम 3 से स्टार्ट करेंगे। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये रहे सारे नंबर्स, और भी हैं, राइट ना। अब हमें इनमें से सम्स करके बताने हैं क्वेश्चंस के। पहला क्वेश्चन क्या है? सी फर्स्ट क्वेश्चन है 21। 21 को हमें 3 नंबर्स को ऐड कर कर लाना है, एडिशन करके आंसर 21 लाना है।
लेकिन तीनों नंबर्स कैसे होने चाहिए, ऑड प्राइम होने चाहिए। तो वो हमने सिलेक्ट कर लिए। सी 3 + 5 8, 8 + 13 gives you 21. So all are odd as well as prime. उसी तरह आपका सेकेंड क्वेश्चन B31 है। हम 31 में सिलेक्ट करेंगे 3 + 5 8, 8 + 23 करेंगे तो आ जाता है 31. All these three are odd as well as prime. The next question is 3.2's 11th question. Write 5 pair of numbers, prime numbers less than 20 whose sum is divisible by 5. यानी हमें अब क्या सिलेक्ट करना है, हमें प्राइम नंबर सिलेक्ट करने हैं बट लेस देन 20। तो हमारे पास आ गए 2 3 5 7 है ना, ये देखिए हमने सारे लिस्ट कर दिए, यहाँ पर दिख रहा है। वी नीड टू राइट दिस, पहले हम लिख लेते हैं 2 3 5 7 11 13 17 till 19 फुल स्टॉप। क्यों, बिकॉज वी हैव टू टेक लेस देन 20। तो हम इसके आगे सोचेंगे ही नहीं, राइट इस सम के लिए। नाउ अब हमें कैसे सम, इसमें से दो दो पेयर्स सिलेक्ट करने हैं। वी हैव टू राइट द सम विच आर डिविजिबल बाय 5। हम कोई भी दो नंबर सिलेक्ट करेंगे और 5 से डिवाइड होने चाहिए, मतलब वो 5 के टेबल का मल्टीपल होना चाहिए। वो क्या होते हैं मालूम है, 5 1 = 5 तो मल्टीपल हुआ 5, 5 2 = 10 तो मल्टीपल हुआ 10। तो हम ऐसे ही खाली मल्टीपल लिख लेते हैं कि 5 के मल्टीपल क्या होते हैं। 5 के मल्टीपल होते हैं 5 10 15 20, यानी सारे आंसर्स ऑफ 5 है ना। हम लोगों को ये नंबर्स हमने लिख लिए। यानी अब जब भी इन दोनों को, हमारे प्राइम नंबर्स को जब हम ऐड करें तो हमारा आंसर हम ये लाने की कोशिश करेंगे, या तो 5 या 10 या 15 या 20 या 25 या 30, ताकि हमारा ये जो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हों। जैसे कि यहाँ पर एक हिंट दिया हुआ है, एग्जाम्पल कि 3 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। अगर हमने इसे ऐड किया तो आंसर 10 आया। 10 क्या है, डिविजिबल बाय 5, यानी इस 10 वाले आंसर को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल और हमारा रिमाइंडर आएगा 0। इसी तरह हमको कितने पेयर्स देने हैं, 5 पेयर्स। ऐसे ये जो 3 और 7 की जोड़ी निकाली है, ऐसी हमें और कितनी जोड़ियां देनी है, 5 और। सो लेट्स गो। सी द फर्स्ट पेयर इज 2 + 3, दोनों प्राइम है, ऐड किया आंसर आया 5 डिविजिबल। उसी तरह एक हिंट में से ले लिया, राइट 3 7। नेक्स्ट 2 + 13 गिव्स यू 15। अगेन दोनों कैसे हैं, प्राइम है और ये आंसर क्या है, डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट लिया 3 और 17, दोनों कैसे हैं, प्राइम है, आंसर क्या है 20। 20 इज डिविजिबल बाय 5। 3 + 17 gives you 20. 20 is divisible by 5. We have to give only 5 examples or 5 pairs. हमने 5 ढूंढ लिए. We are going to list them like this in the bracket. And we have answered our question. Okay. The next one is 3.2's 12th question, which is fill in the blanks. A number which has only 2 factor is called, definition है ये. The number which has only 2 factors, सिर्फ जिसके 2 हों तो वो क्या कहलाता है, correct, it is prime numbers. A number which has more than 2 factors, अगर 2 से ज़्यादा factor मिल जाए तो yes, composite numbers. One is neither dash nor dash, it is neither prime nor composite. The smallest prime number is 2 and the smallest composite number is 4. अगर ऐसा कहें the smallest even prime number is, तो क्या लिखोगे, the smallest even prime number के लिए क्या लिखोगे, good 2, और smallest odd prime number के लिए क्या लिखोगे, correct 3. Understood? अगर ऐसे questions आते हैं, now you are going to solve it and you are going to answer it correctly. My dear students, I hope you have understood the method of solution of the questions from this exercise 3.2. Okay, so you are now able to solve all the questions of 3.2 and you are aware of all the concepts. Thank you my dear students for watching this video. We are going to meet soon with another part. Till then, have a great day ahead.